Today we are going to start with chapter number 22, inverse of a matrix and its application. Okay. हमने जो आगे पढ़ा जो मैट्रिक्स के दो पार्ट है, डिटरमिनेंट और सिंपल मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट और सिंपल मैट्रिक्स में जो हमने लर्न किया ये उसका सिर्फ आगे नेक्स्ट पार्ट है और डिटेल में है। ओके, यहाँ पे स्टोरी सम से हम स्टार्ट करेंगे। जो लेट अस कंसीडर एज एन एग्जांपल, Vino spent rupees 120 in buying 2 pens and 5 notes books, whereas Santanu spent rupees 100 in buying 4 pens and 3 notebooks. We will try to find the cost of one pen and the cost of one notebook using matrix. Let the cost of the one pen be rupees X and the cost of one notebook be the notebook be rupees Y. Then the above information can be written in matrix form. Okay. First of all, we have to write this equation in matrix form. 2 5x 120 4 3 by 100. Okay, this can be written as A cross A multiply X is equal to B, where A is equal to 2 5 4 3 matrix, X is equal to capital X is equal to small xy, and B is equal to 120 100. Our aim is to find X. Okay, जो x फाइंड करना है मैट्रिक्स x और y, जिससे हमें x और y की यहाँ पे जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। इन ऑर्डर टू फाइंड x वी नीड टू फाइंड अ मैट्रिक्स A इनवर्स जो हमने डिटरमिनेंट में सीखा है, सो दैट x इज कैपिटल X इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। दिस मैट्रिक्स A इनवर्स इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A, जो हमने लास्ट चैप्टर में लर्न किया है। ओके, in this lesson we will try to find the extents of such matrix like x or y. We will also learn to solve a system of a linear equation using matrix method. जो equation है ये उसको solve करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हम इस चैप्टर में लर्न सीखेंगे। ओके, फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो हमने लास्ट चैप्टर में फाइंड किया वो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट विद ईच स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इज एसोसिएटेड मैट्रिक्स से कैपिटल से मैट्रिक्स A is equal to 2 5 4 3. its determinant will be 2 5 4 3. it is denoted by mod A मतलब determinant of matrix A. Similarly for the matrix A 1 3 1 2 4 5 1 minus 1 7, जो लास्ट चैप्टर में हमने फाइंड किया था वो है जो इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, कोई भी ऑर्डर में करेंगे सब सेम ही आएगा। ओके, 3 2 6 minus 5 5 4 20, so the answer is minus 40. And similarly for the matrix A is equal to 1 3 1 2 4 5 1 minus 1 7, the corresponding determinant is mod A 1 3 1 2 4 5 1 minus 1. इसका जो डिटरमिनेंट है वो कैसे फाइंड करना है, जैसे कि ये जो है उसको ये रो को हम कंसीडर करेंगे, उसके हिसाब से हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। प्लस माइनस प्लस 1, अगर 1 है तो ये और ये डिलीट हो जाएगा। 4 7 28 माइनस 5 1 5 और माइनस माइनस प्लस 5, और आगे जो मल्टीप्लाई में होगा वो 1 माइनस 3। अंदर अगर 3 है तो अगर 3 है तो ये कॉलम और ये रो डिलीट। 7 2 14 minus 5 1 5. Okay, and then according to 1 ये कॉलम और ये रो डिलीट। 2 1 minus 2. first of all we have to write 1 plus 1, then 2 1 minus 2 minus 4 1 4. The total answer is 28 plus 5
28 plus 5 32 sorry 32 14 minus 5 19 sorry 9 minus 3 मतलब plus 6 minus minus plus 9 मतलब minus minus plus 4 2 6 1 जा 1 sorry 6 3 जा 18 so the whole answer 18 minus 6 मतलब 12 is equal to 4 and 4. Okay, so the determinant of mod A is 44. Mod A is equal to 44. Example 22.1. Determine whether matrix A is singular or non-singular. A is equal to minus 6 minus 3 4 2. Here mod A is equal to minus 6 minus 3 4 2. So the determinant, how we find the determinant? 6 minus 6 2 are minus 12 minus 4 minus 4 3 are 12 but minus minus plus 12 plus minus cancel, so the 0. Therefore the given matrix A is a singular matrix. Okay, every null matrix is known as a singular matrix. जो कोई भी जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो तो उसको सिंगुलर हम बोलेंगे. ओके, B A is equal to 1 2 3 0 1 2 1 4 1 1 minus 2 plus 3 मतलब ये रो उन्होंने कंसीडर की है. यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस. ओके, ए अगर एक है तो उसके अलावा जो है वो यहाँ पे है. ओके, माइनस 2 है तो उसके अलावा जो ये है वो यहाँ पे है 0 1 2 1 0 1 2 1 और 3 है तो उसके अलावा 0 1 1 4 0 1 1 4. So the answer is minus 6 is not equal to 0. Therefore the given matrix is non-singular. Okay. Example 22.2. Find the value of x for which the following matrix is singular. Okay. A is equal to 1 minus 2 3 1 2 1 x2 minus 3. Okay. Mod A मतलब determinant of matrix A 1 minus 2 3 1 2 1 x2 minus 3. According to the first रो के मुताबिक उन लोगों ने डिटरमिनेंट फाइंड किया है जिसका आंसर है -8 minus 8x. Since the matrix A is a singular, we have a mod A is equal to 0. अगर mod A is equal to 0 हो तो the matrix is singular. So mod A is equal to -8 minus 8x is equal to 0. X is equal to -1. Thus the required value of x is -1. जिससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया है. ठीक है. Example 22.3. Given matrix A is equal to 1 6 3 2 so that mod A is equal to mod A dash. A dash मतलब inverse of matrix A where A dash denoted the transpose of the matrix. मतलब यहाँ पे transpose करना है A dash का. A is equal to 1 6 3 2. Transpose मतलब जो principal diagonal है वो सेम रहेगा और जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो चेंज होगा. ओके, तो 1 2 6 का 3 हो गया. यहाँ पे mod A मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A 1 2 2 minus 3 6 so the answer is -16. And mod A is equal to mod A dash is equal to determinant of A dash. So 1 3 6 2 1 2 1 2 2 minus 3 6 so the answer is -16. From 1 and 2 we find that mod A is equal to mod A dash. जो यहाँ पे फाइंड करना था वो यहाँ पे प्रूव हो गया है. Minors and cofactors of the elements of square matrix. Minors and cofactors मतलब जो हमने आगे लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिया है
कंसीडर मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. The determinant of the matrix obtained by deleting the ith row and jth column. हमें अगर डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए जो हमने किया वो कोई भी रो कॉलम हमें कंसीडर करना है, उसके हिसाब से हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, उसके हिसाब से हमें उसके आगे साइन लगाना है, जैसे प्लस माइनस प्लस, अगर यहाँ पे हो तो प्लस माइनस प्लस, अगर ये रो हो तो माइनस प्लस माइनस. ओके, the determinant of the matrix obtained by deleting the ith row and jth column of A is called the minor of Ij and is denoted by Mij. The minor of a matrix cofactor Cij of Aij is defined as Cij. This is the equation for the Cij. Cij is equal to minus 1 raised to I plus j. Capital Mij मतलब minus. Okay. For the example M23 मतलब जो ये है उसका माइनर हमें फाइंड करना है, तो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, उसके जो बाकी जो रिमेन है उससे हमें फाइंड करना है माइनर, जो यहाँ पे 1 1 1 2 okay. Then cofactor of 2 3, cofactor of A23, okay, cofactor of A23. अगर A23 का कोफैक्टर्स फाइंड करना है तो यहाँ पे जो -1 I plus j मतलब 2 3 2 plus 3 5 5 मतलब जो -1 है वो -1 का -1 ही रहेगा, और जो उसका माइनर है वो क्या है, जो ये जो माइनर आएगा इधर वो माइनर की साइन क्या होगी माइनस. अगर माइनर माइनस हुआ तो उसकी साइन प्लस होगी, अगर माइनर प्लस हुआ तो उसकी साइन माइनस होगी. ओके, माइनस A11 A12 A31 A32. Okay, next example 22.4. Find the minors and the cofactors of the elements of matrix A2563. Okay, यहाँ पे सब जो चार के चार एलिमेंट है उस सब के माइनस और उस सब के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं. फॉर मैट्रिक्स A, डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to 2563 is equal to 6 minus 30 is equal to minus 24. ओके, माइनर 1 1 जो पोजीशन 2 की है उसका माइनर 3, उसके सामने वाला उसका माइनर है C11 मतलब उसका कोफैक्टर -1 raised to 1 plus 1 1 plus 1. अगर -1 की पावर इवन हुई तो -1 से -1 का +1 हो जाएगा, अगर -1 की पावर ऑड हुई तो -1 का -1 ही रहेगा. ओके, इवन का -1 का प्लस हो गया तो आंसर इस प्लस में है, -1 पावर ऑड तो उसका जो आंसर है वो माइनस में है. ओके, ऐसे उसके ये जो है वो माइनस है, सॉरी ये माइनस ये माइनस माइनस ये माइनस ये माइनस, और ये जो है वो है कोफैक्टर्स, सॉरी नहीं बराबर, ये जो है वो है कोफैक्टर्स. ओके, नेक्स्ट find the minors and the cofactors of the element of matrix. ये जो है ये जो एग्जांपल है वैसे एग्जांपल एग्जाम में आते ही है, जैसे कि A is equal to -1 3 6 2 5 -2 4 1 3. माइनर फाइंड करने के लिए जो है वो अगर हमें M11 मतलब पोजीशन 1 का जो 1 और 1 कॉलम एंड फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है उसका माइनर फाइंड करना हो -1 का, तो -1 के साथ जो कॉलम है और जो रो है वो डिलीट हो जाएगी. उसके अलावा जो है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है. 5 is 15 minus plus 2 1 2 17. उसका कोफैक्टर क्या हुआ C11 मतलब 1 1 उसका जो -1 का पावर है वो है +2 सॉरी
इवन है, जिससे हम जो उसका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ओके, तो 17। वैसे ही M12 अगर M12 हो तो मतलब ये उसका इसको डिलीट करते हैं, जो रिमेन है उससे उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद उसका माइनर मिल जाएगा। माइनर की जो वैल्यू है वो कोफैक्टर में डालते हैं तो उससे उसका कोफैक्टर्स भी मिल जाएगा। कोफैक्टर के इक्वेशन में डालने के बाद उसका आंसर भी मिल जाएगा। वैसे ही M12 M13 M21 M22 M23 फिर M31 M32 M33 उसका जो आंसर आएगा डायरेक्ट उसका मिल जाएगा -11। ओके, ये है जो आपको घर पे ट्राई करना है अब खुद ही। फिर ये नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। डायरेक्ट हमको मैट्रिक्स दिया है और उसके बाद डायरेक्ट बोल दिया है कि थर्ड रो ऑफ मैट्रिक्स के एलिमेंट का माइनस फाइंड करना है। अगर इसका माइनस फाइंड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसका -2 के अकॉर्डिंग जो रो और कॉलम है उसको डिलीट करना है। उसके अलावा जो बाकी बचता है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, जिससे हमें मिल जाएगा इसका माइनर। वैसे ही 2 का 0 का -3 का करना है। फिर कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स अगर हमें फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड माइनर्स। अगर माइनर हम फाइंड नहीं करेंगे तो कोफैक्टर भी फाइंड नहीं कर सकते। ओके, if A is equal to 2 3 4 5 B is equal to -2 3 7 4, verify that A is equal to A transpose mod A and B is equal to mod B is equal to B transpose and mod AB is equal to mod A mod B and mod BA। ये सब सेम ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है टॉपिक adjoint of a square matrix 22.3, let A is equal to 2 1 5 7 be a matrix, then mod A मतलब matrix determinant of A is equal to 2 1 5 7, let Mij Cij be the minors and cofactors of Aij respectively, then let Mij and Cij जो माइनर जो कोफैक्टर जो फाइंड करना हमने सीख ही लिया है, उसके अकॉर्डिंग जो उसका माइनर वो 7, उसका कोफैक्टर है 7, उसका माइनर m का माइनर है 5, उसका कोफैक्टर है -5। वैसे ही आगे we replace the element of A by its cofactors and get B। ओके, जो यहाँ पे कोफैक्टर मतलब C11 अगर 2 का कोफैक्टर है 7, सॉरी C11 का जो कोफैक्टर है C11 मतलब पोजीशन 11 का जो कोफैक्टर है वो है 7, तो यहाँ पे 2 की जगह 7 हो जाएगा। वैसे ही C12 का C12 पोजीशन पे 1 है तो उसका कोफैक्टर हो जाएगा 5 और उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। वैसे ही जो B है वो 7 -5 -1 2 ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स B of a cofactors obtained in one equation 1 above is B ट्रांसपोज मतलब डायगोनल जो है डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल वो वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके अलावा जो एलिमेंट है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, -1 का -5 और -5 का -1। ओके, the matrix B transpose obtained above is called the adjoint of matrix A। it is denoted by adjoint A। adjoint मतलब ADJ, उसकी जो साइन है वैसे कैपिटल A D J और कैपिटल A, adjoint A। Thus, adjoint of a given matrix is the transpose of the matrix whose elements are the cofactors of the elements of the given matrix। मतलब जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स था A2 1 5 7, उसका एडजॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली अगर हम फाइंड करेंगे तो उसका एडजॉइंट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कोफैक्टर्स से हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब कोफैक्टर से 2 का 7 7 का 2 5 1
और 1 5 पर यहाँ पे अगर पोजीशन होगी तो उसका साइन भी चेंज होगा, वो है -1 एंड -5 अकॉर्डिंगली। अगर और उसका हमें करना है जो यहाँ पे बोला उन्होंने कि कोफैक्टर्स जो आएंगे उसका एलिमेंट का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब उसकी जगह बदलनी है, सिर्फ उसकी जगह, मतलब डायगोनल सेम का सेम रहेगा पर उसकी जगह जो है वो बदल जाएगी, ये जो जगह है वो बदल जाएगी। ओके, नेक्स्ट वर्किंग रूल टू फाइंड द एडजॉइंट A of a matrix A, replace each element of A by its cofactor and obtain the matrix of a cofactors। मतलब जो मैट्रिक्स A है उसका कोफैक्टर हमें फाइंड करना है। कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड माइनस, उसके बाद उसका कोफैक्टर फाइंड करना है। उसके बाद जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स में कोफैक्टर के रिलेटेड जो कोफैक्टर फाइंड होते हैं वो पोजीशन पे कोफैक्टर पुट्स करना है, डालना है, वो जो आएगा। उसके बाद टेक द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स मतलब डायगोनल सेम का सेम ही रहेगा और जो उसके प्रिंसिपल डायगोनल सेम का सेम रहेगा, उसके जो आजू बाजू के जो एलिमेंट है वो रिप्लेस हो जाएंगे। ओके, एक्सचेंज हो जाएंगे। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A -4 5 2 -3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट mod A is equal to -4 5 2 -3। देन यहाँ पे जो है वो हमें फाइंड करना है सबसे पहले, वो है कोफैक्टर्स जो A11 -1 raised to 1 + 1 -3 -5 -2 and -4। We have replaced each element of A by its cofactor to obtain its matrix of a cofactors। हमें जो मैट्रिक्स A है उसके जो एलिमेंट्स है उसको कोफैक्टर्स के साथ हम लोग रिप्लेस करेंगे। ओके, जो जैसे -3 5 2 -3 का आंसर क्या आया? -4 -3 मतलब -3 -4 2 5, यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 पर उसकी जो साइन है वो क्या हो जाएगी? चेंज, माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, सो द इक्वेशन 1, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स 1 इज एडजॉइंट A। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स 1 मतलब क्या है? यहाँ पे जो -3 -5 -2 -4 था उसका क्या हुआ? 3 और 4 उसकी जगह पे जगह, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल वैसे का वैसे, उसके अलावा जो एलिमेंट है उसका सिर्फ एक्सचेंज होगा, मतलब 5 की 2 पोजीशन पे और 2 की 5 की पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द बेसिक एंड सिंपल ट्रांसपोज। एंड जैसे कि ये थोड़ा हार्ड नहीं है पर जो उसका जो फाइंड करने का जो तरीका है वो एकदम नूडल्स की तरह, जैसे इसे ऐसे 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 सब घूमते घूमते वैसे करना है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है सिर्फ इसमें। अगर जैसे हम एकदम छोटा मतलब जगह छोड़ छोड़ के अगर हम फाइंड करेंगे माइनर्स कोफैक्टर्स तो हम इजीली इसका एडजॉइंट A फाइंड कर सकते हैं। एडजॉइंट A एग्जाम में आता ही है और ये आता है 4 मार्क्स में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, कोफैक्टर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ओके, A11 का -6 A12 का 2। नेक्स्ट, और जो कोफैक्टर्स हमने फाइंड किए उसको हमने यहाँ पे कोफैक्टर्स की पोजीशन पे डाल दिया। जैसे 1 1 का यहाँ पे आएगा, 1 2 का यहाँ पे, 1 3 का यहाँ पे, 2 1 का, 2 2 का, 2 3 का, 3 1 का, 3 2 का, 3 3 का। ओके, दस एडजॉइंट A मतलब प्रिंसिपल डायगोनल वैसे का वैसा ही रहेगा, उसके अलावा जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा। 3 -7 यहाँ पे आ जाएगा, -9 यहाँ पे, और ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 की जगह पे। ओके, सिंपल ही है। If A is a square matrix of order n, then A adjoint A is equal to adjoint A, where In is the unit matrix of order n। unit matrix मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स। ओके,
ये सब वेरिफिकेशंस हैं उसका, जो इक्वेशन दिया है वैसे की वैसे ही है। ओके, जो आंसर है वो ऐसे के वैसे ही होगा। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसका ये चैप्टर है। कंसीडर मैट्रिक्स A, B, C, D. We will find, if possible, matrix B is equal to X, Y, U, B such that B is equal to B, A is equal to I. A, B, C, D, X, Y, U, B 1 0 0 1 I is equal to यूनिट मैट्रिक्स। ओके, जो मल्टीप्लाई का जो रूल्स है मैट्रिक्स का वो हम लोग को पता है। ए बी रो का कॉलम के साथ, ये वही रो का दूसरी कॉलम के साथ, दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, दूसरी रो का दूसरी कॉलम के साथ। ओके, और जो ए का है वो मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी का मल्टीप्लाई बाय यू, देन उसके बाद में ए का मल्टीप्लाई वाई प्लस बी का मल्टीप्लाई वी के साथ। ओके, जो यहाँ पे जो उसका आंसर है वो है, और उसको अकॉर्डिंगली 1 0 0 1 जो यहाँ पे दिया गया है वो है यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, कंपेयरिंग बोथ साइड मतलब ओके, ax plus bu is equal to 1, ay plus bb is equal to 0, cx plus du is equal to 0, cy plus dv is equal to 1. Solving for x, y, u and b, we get जो x और जो y और जो b और जो d और सॉरी u और जो v है उसको ये चार इक्वेशंस के साथ इस इक्वेशन को एक दूसरे के साथ सॉल्व करके जो मिला है वो x इज इक्वल टू डी अपॉन ए डी माइनस बी सी, वाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए डी माइनस बी सी, यू इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी, वी इज इक्वल टू ए अपॉन ए डी माइनस बी सी, प्रोवाइडेड ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू, सो दैट ए बी सी डी इज नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी डी मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो, बी इज इक्वल टू डी ए डी माइनस बी सी माइनस बी ए डी माइनस बी सी माइनस सी ए डी माइनस बी सी ए अपॉन ए डी माइनस बी सी। ये जो एक्स वाई यू और वी की जो वैल्यू है वो एक्स वाई वी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट की गई है। देन बी इज इक्वल टू 1/2 ए डी माइनस बी सी, सब में से ए डी माइनस बी सी कॉमन निकाला है वो है बार, कि वो अपर में है इसलिए 1 minus 1 d minus a d minus b c. It may be verified that b a is equal to I. It may be noted from above that we have been able to find a matrix b is equal to 1 upon a d minus b c, d minus b c minus c a is equal to 1 upon mod a adjoint a. mod a मतलब determinant of a and adjoint a मतलब adjoint a में फर्स्ट ऑफ ऑल कोफैक्टर्स के बाद जो इसके पहले हमने सीखा, कोफैक्टर्स के बाद जो साइन ऑफ जो कोफैक्टर्स है उसके बाद जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अलावा जो एलिमेंट है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। दिस मैट्रिक्स B is called the inverse of A and is denoted by A inverse. For a given matrix A, if there exists a matrix B such that AB is equal to BA is equal to unit matrix, then B is called the multiplicative inverse of A. We write this as B is equal to A inverse. Note, observe that if AD minus BC is equal to 0, so that mod A is equal to 0, the RHS of 1, the RHS of equation 1 does not exist, and B is equal to A inverse is not defined. अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो उसके हिसाब से B is not equal to A inverse. अगर 0 होगा तो B A inverse हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, दिस इज द रीजन
This is the reason why we need the matrix A to be non-singular in order that A possesses multiplicative inverse. Hence, only non-singular matrix possesses multiplicative inverse. Also, B is non-singular and A is equal to B inverse. Okay? अगर non-singular मतलब null matrix नहीं होगा तभी null matrix नहीं होगा तभी हम उसका inverse find कर सकते हैं. Next. Find the inverse of the matrix A is equal to 4, 5, 2 minus 3. A is equal to 4, 2, 5 minus 3. Okay. First of all we have to find. सबसे पहले हमें find करना है determinant of A, जिसका जैसे कि 4 3 से minus 12, 4 3 से 12, minus 3 का minus, 5 2 से 10, minus 10 is equal to minus 20 is not equal to 0. Hence A is not singular. It means A has an inverse, so that A inverse exists. अगर 1 हो तो हम उसका इन्वर्स कर 2 हो तो हम उसका इन्वर्स कर सकते हैं, जैसे कि 1/2. अगर 0 तो क्या हम उसका इन्वर्स कर सकते हैं? नहीं. जिस वजह से अगर मैट्रिक्स की वैल्यू अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो तो उसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है. ओके. सो यहाँ पे इसका जो इन्वर्स है डिटरमिनेंट की वैल्यू -22 है. जैसे इससे मतलब उसका जो हम इन्वर्स है वो फाइंड कर सकते हैं. ओके. A inverse is equal to 1 upon mod A. Adjoint A is equal to 1 by -22. उसका adjoint A है मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो वैसे का वैसा ही रहेगा और उसका जो वो है उसका प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो है उसकी साइन और पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी. ओके. सो द आंसर इज 3/22, 5/22, 1/11, -2/11. Okay. Verify that A inverse is equal to A is equal to I मतलब यूनिट मैट्रिक्स. नेक्स्ट, फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A. ये मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3 का. ये मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3 का. ओके. ऑर्डर 3x3. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ A. सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड करना है. डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A जो है यहाँ पे -5 जो 0 नहीं है, जिससे हमें उसका जो इन्वर्स है वो फाइंड कर सकते हैं. लेट Aij be the cofactor of the elements Aij. A11 is equal to -1. जो कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं वो A11 का -19, A12 का 35, A13 का 9, A21 का 2, A22 का -5, A23 का -2. वैसे ही आगे उसको सबको पोजीशन के उसकी जो पोजीशन है उस पे रख दिया. उसके बाद एडजॉइंट A मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो वैसे का वैसा ही रहेगा. उसके अलावा जो उसके एलिमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे. ओके. A-1 is equal to 1 upon mod A. Adjoint A is equal to 1 minus 5. अगर मैं इन्वर्स फाइंड करना है तो उसका इक्वेशन है A inverse is equal to 1 upon mod A. mod A मतलब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट A मतलब उसका प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो वैसे का वैसा रहेगा. उसके अलावा जो उसके एलिमेंट्स है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, जिससे हमें A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू है यहाँ पे. यहाँ पे जो वेरीफाई है वो है A इनवर्स A is equal to A इनवर्स A into A इनवर्स is equal to I3. अगर यहाँ पे यूनिट उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो अगर यहाँ पे I2 होगा तो उसका जो आंसर है वो I2 में आएगा. अगर इसका I3 I4 I4. If A is equal to 1 0 2 -1 and B is equal to -2 1 0 -1, फाइन.
ये सब यहाँ पे जो दिया है वो फाइंड करना है। सिंपल फाइंड है। फर्स्ट यहाँ पे ए बी इनवर्स का फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा है वो आपको सबको पता है। रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, वही रो को दूसरी कॉलम के साथ, जैसे ही दूसरी रो को फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। ओके, और उसके बाद उसका इनवर्स होना है। जो सी आएगा मैट्रिक्स सी, उसको उसका इनवर्स करके हमें इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा। फिर सेपरेटली बी इनवर्स फाइंड करना है, फिर ए इनवर्स फाइंड करना है। उसके बाद जो इसकी और इसकी जो वैल्यू आएगी उसको थर्ड में पुट करनी है, जिसका आंसर हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। ओके, check your progress. Now important part, ये जो है solution of a system of linear equation 22.5, ये जो चैप्टर का जो पॉइंट है, इसमें से 6 मार्क्स के जो मैक्सिमम मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स में, जो लास्ट में होते हैं पेपर्स में, उसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। और वो जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 22.5 में से ही आता है, उसके अलावा आता ही नहीं। तो उसमें जो है वो सिंपल एक सिस्टम होती है। लीनियर इक्वेशन सबको पता है, x + y = 0, x + y = 0। अकॉर्डिंगली हमें उसको मैट्रिक्स में उसको मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। उसके बाद उसको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे जो हमें फर्स्ट इक्वेशन है वो a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2, उसको हम ऐसे ही मैट्रिक्स में फॉर्म करेंगे। सब डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, जैसे कि ऐसा और ऐसा दिया गया था, उसको मैट्रिक्स में फॉर्म करना है। यहाँ पे a1 b1, फिर उसके बाद a2 b2, और यहाँ पे जो है वो कॉमन है वो x और y, वो यहाँ पे x और y मल्टीप्लिकेशन में होगा, और जो उसका आंसर आएगा c1 c2 वो ये रहा। ओके, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं कैपिटल A, x और y को बोलते हैं कैपिटल X, और c1 c2 को बोलते हैं कैपिटल B। मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स X एंड मैट्रिक्स B। यहाँ पे जो अगर 3x3 अगर 3 इक्वेशन दिए गए हो तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसका मैट्रिक्स बनता है वो ऐसा होगा x y z d1 d2 d3। और जो जैसे कि डायरेक्टली A मैट्रिक्स, X मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स। ओके, if A is a singular then A मतलब determinant A is equal to 0, hence A inverse does not exist, so this method does not work। अगर यहाँ पे determinant A ही 0 हो गया तो उसके बाद उसका जो मैट्रिक्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो जो x और y की वैल्यू है वो हमें मिलेगी ही नहीं। ठीक है, x और y की वैल्यू हमें मैट्रिक्स मेथड से नहीं फाइंड कर सकते। ओके, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 हो गया तो when mod A is not equal to 0, so that when a1 b1 minus a2 b2 is not equal to 0, we multiply the equation x y b with equation with A inverse on both side। मतलब जो ax is equal to b है, उस जो यहाँ पे ax is equal to b, तो ax के दोनों साइड A इनवर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। A इनवर्स A द लॉ, ओके, रिस्पेक्टिवली लॉ A इनवर्स x, A इनवर्स b, Ix, I मतलब A इनवर्स का A अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यूनिट मैट्रिक्स। जैसे कि 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ A इनवर्स, जैसे कि A इज इक्वल टू 2 हो तो 2 और उसका जो इनवर्स है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 2, 2 मतलब 1, सो द आंसर इज यूनिट मैट्रिक्स। ओके, जैसे ही x इज इक्वल टू A इनवर्स B, सो हमें सिर्फ जो हम लोग जो
मैट्रिक्स मेथड से हम जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसकी वैल्यू सिर्फ ये इक्वेशन में डालनी है और इससे A इनवर्स और B फाइंड, अगर A इनवर्स क्रॉस B होगा तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा X। ओके, A इनवर्स इज इक्वल टू A अपॉन A1 B1 माइनस A2 B1 B2 माइनस B1 A2 माइनस A2 A1। वी गेट X इज इक्वल टू 1 अपॉन जो यहाँ पे सॉल्व किया है उसके हिसाब से A अपॉन A1 B1 A1 B2 A2 B1 B2 माइनस B1 माइनस A2 A1 और C1 C2 मल्टीप्लाई किया है। x y जो हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू है मैट्रिक्स x एंड y 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 B2 C1 जो मल्टीप्लिकेशन है वैसा रो को कॉलम के साथ, रो को वही कॉलम के साथ। सो द आंसर इज दिस एंड देन x की वैल्यू ये आएगी और y की वैल्यू ये आएगी। ओके, नेक्स्ट उसके हिसाब से हमें आगे करना है एग्जांपल्स। ओके।